Hello everybody, I have brought before you the next poem, that is Father to Son. This is very important poem. The important in the sense that here poet has brought the clash between traditional life as well as modern life. Not only that, this poem also contains some other theme, that means communication gap. Here, what kind of thinking goes with a mature person, and what kind of thinking, imagination or ideas come across to those adolescent children. So this poem displays the clash between modern life and traditional life, disciplined lifestyle and carefree lifestyle. Okay, so father represents traditional life, cultural life, discipline bound life, whereas son represents modern life, carefree life, rough and tough life. Side by side, this poem also highlights some communication gap. Communication gap, that means discipline has its own dignity, whereas modern people thinks, whereas adolescent persons thinks that they have their own right of life, they have their own celebrations. Now this poem tells us that those who are in a disciplined life, those who are in a systematic bound, those who are with a traditional systems, they are one step ahead than that of carefree and life full of freedom. Okay, so let us know step by step. Once more, I must remind you that here this poem has displayed before us a gap between what? Traditional life as well as modern life. Here I stands for father. Father express his grief. Father, here this father is not an individual father. This father refers to that the father belongs to the universe. Because this problem happens in every house, right? So what father says, how father is expressing his grief here. I here refers to father. I do not understand this child. Question arises, why his child he is not able to understand, right? Though we have lived together now, till now we have lived together in the same house. That means father and children. Father and child are living in the same house, but poet says that father says that I do not understand what he likes and what he dislikes, right? So there comes a communication gap. Because of this, father feels dignity being a father, and adolescent child who are living in this modern age, they are thinking that they have their own right, they have their own life livelihood style, right? In the same house for years and years long, I know nothing of him. मुझे कुछ भी नहीं मालूम है. I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. बचपन में my son was just like me. He was obedient fellow. He was truthful, trustworthy. Okay, faithful. All the goodness was there as I liked in him. फादर कह रहे हैं, मैं जो चाहता था वही बिल्कुल डिस्प्ले किया करता था, पर अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो ग्रो अप हो रहे हैं, वो हमसे दूर होते जा रहे हैं. आखिर बात क्या है पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. सो yet have I killed the seed I spent, or sown it where the land is his and none of mine? Father is now asking question to himself. कभी कभी खुद उनको सवाल आता है, वो खुद को सवाल करता है और खुद से पूछता है कि have I killed? Here this word seed refers to, here this word, open the book तब समझ में आ जाएगा. Seed refers to here love and caring, all the comfortable life, hospitality and all the needs, चाहे मनी हो, क्लोथ्स हो, फूड हो, लव हो, केयरिंग हो, जो एक पापा किसके लिए, एक बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो फादर इज टेलिंग, हैव आई किल्ड, हैव आई स्पॉइल्ड, हैव आई मिसयूज्ड दैट?
क्या मैंने जो लव, मैंने जो प्यार, मैंने जो पैसा खर्च किया, मैंने जो क्लोथ, सब कुछ प्यार से उन लोगों को पाला है, उसको पाला है, क्या हैव आई स्पॉइल्ड? क्या मैंने इसको मिसयूज कर डाला? क्या मैंने इसको खत्म कर दिया? हैव आई यूज्ड इट, हैव आई शोड इट फॉर मिसयूज, फॉर रॉन्ग यूज, फॉर मीनिंगलेस यूज? He was asking question to himself, right? And he says that, आज की डेट में the land refers to हाउस और वो एरिया जहां पे उनका मकान है, जहां पे उनका घर है। तो फादर इज टेलिंग, बेटा आज इतना बड़ा हो गया है, बेटा आज इतना एकोमोडेशन पा गया है, बेटा की फ्रेंड सर्कल आज इतना ये हो गया है, घर पे आता है तो लगता है कि दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज एरिया। ऐसा लगता है कि बचपन में वो ओनर बन गए हैं। ओनर नहीं, वो मैनिपुलेटर भी हो गया है, सब दोस्तों का, फ्रेंड्स का वो क्या है, मास्टर है, वो ऐसा लीडर है। पोएट इज, फादर इज टेलिंग द लैंड इज हिज। ऐसा लगता है मकान, ये हाउस तो है मेरा, मगर क्या है, दिस इज नॉट माइन। ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे। हाँ, जवान हो गया वो, ऐसा जवान हो गया कि लगता है कि दैट मींस इट इज हिज हाउस, इट इज हिज एरिया, ये एरिया, ये टाउन उसी का है, सब कुछ। दैट मींस ऑल द थिंग्स, रूलिंग, कमांडिंग, ऑर्डर, सब, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। इसका फ्रेंड सर्कल जो है सब इनके फॉलोअर हैं, सब इनका दीवाना है। पोएट इज, फादर इज टेलिंग, फादर इज सॉरोफुली सेइंग, मुझे बिल्कुल आई डोंट लाइक इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस घर पे मैं एक अननोन पर्सन हूं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। हम दोनों लोग कभी बात करते हैं तो वो सर झुका के बात करता है, या फिर वो मुंह दूसरी तरफ रखता है, या फिर हम भी कभी बात करते हैं उसकी तरफ ताकने का मन नहीं करता है। अरे कौन फादर ऐसा है जो कि दैट मींस अगर चिल्ड्रन डिसोबीडियंट होगा तो फिर उनके साथ फ्रीली बात करेगा? कोई नहीं चाहेगा ना इस तरह फ्रीली बात करने का। तो फिर व्हाट ही सेज दैट नन ऑफ माइन, ऐसा लगता है कि मैं इस घर का कुछ भी नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं। We speak like a stranger, there is no sign of understanding। हम दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ना मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, ना वो मुझे समझने की कोशिश करता है। There is no sign। This child is built to my design। This child, ये मेरा ही लड़का है, ये मेरा ही सन है। जाहिर सी बात है, बाप का बेटा है तो बाप की जैसे शकल सूरत होगा ना, तो शकल सूरत से, फिगर से, बॉडी लुक से, चेहरे की अपीयरेंस से, एवरीथिंग, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, बिल्कुल मेरे डिजाइन का है। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। और फिर भी मैं नहीं जान रहा हूं कि दैट मींस इसकी लाइकिंग्स और मेरी लाइकिंग्स में क्यों इतना डिस्पैरिटी है, क्यों इतनी डिफरेंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तो मेरा कार्बन कॉपी है, आउटवर्ड से, फिजिकल लुक से टोटली डिफरेंट है, बट ये जो चाह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट वन है। नाउ साइलेंस सराउंड्स अस मींस हम दोनों के बीच में क्या है, साइलेंस सराउंड्स अस। साइलेंस बोले तो हम दोनों के बीच में बात नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। आई वुड हैव, फादर इज टेलिंग, मुझे लगता है आई वुड हैव हिम प्रोडिगल सन। प्रोडिगल मीन्स जो लड़का या फिर जो बच्चा जो है बहुत ज्यादा खर्च कर देता है, ऐसा दैट मीन्स केयरलेसली खर्च करता है, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, घर पे तो रिटर्न होता है लेकिन वो जानता है कि ये फादर का हाउस है। आज वो सोच रहे हैं ये कि फादर का हाउस है, ये बाप का हाउस है, लेकिन कभी वो इसी हाउस को वो जानता था, द होम ही न्यू बिफोर। अच्छा, होम और हाउस में अंतर क्या है? हाउस एक शेल्टर है, हाउस एक लिविंग प्लेस है, शेल्टर है जहां पे कोई भी इंसान रह सकता है। बट होम वो है जहां पे दैट मींस लव होता है, जहां पे केयरिंग होता है, लव होता है, केयरिंग होता है, ठीक है, इमोशन होता है, ठीक है, काइंडनेस शो करता है, राइट। जैसे लोग कहते हैं कि दैट मींस पापा ने, इंसान ने घर बनाता है, ठीक है, मकान बनाता है, लेकिन घर बसाती है कौन? औरत ने। औरत लोग क्या है? लेडीज लोग, गर्ल्स लोग, इनोसेंट लोग क्या है? दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, केयर, लाइफ एटसेट्रा। तो पहले इस घर को वो घर समझता था, लेकिन अब वो क्या समझने लगे?
बस ये समझने लगे तो मकान है, सोना है, खाना है, पीना है, बस इससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। मीन्स फादर इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रीफ ओवर व्हाट? कम्युनिकेशन गैप, कि मैंने बेटा को समझने की कोशिश कर रहा हूं बट बेटा समझ नहीं रहा है, ठीक है। रादर देन ही सी हिम मेक एंड मूव, रादर देन सी हिम, देखो यहां पे सी हिम पापा चाहता है, पापा चाहता है, यहां पे फादर चाहता है, क्या चाहता है? कि बेटा खुद को देखे कि वो कौन है, उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लाइफ का टारगेट क्या है, एजेंडा क्या है। मेक हिम एंड मूव, मूव मीन्स उसी हिसाब से वो एक्टिव बन जाए, ठीक है। पहले वो खुद को देखे, फिर खुद का जो है लाइफ प्लान बनाए वो, और फिर उसी हिसाब से चले। देखो अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने एक बात कहा है, ड्रीम 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 एंड देन थिंक थिंक एंड देन एक्ट, देन एक्ट। तो यहां पे फादर भी चाहता है क्या? कि अपना बच्चा, एडोलेसेंट बच्चा केयरलेस ना होके वो खुद के बारे में सोचे ना, हु एम आई। सपोज मैं अगर बच्चा हूं तो मेरे पापा यही चाहेगा कि बेटा हम सोचे, क्या सोचे? कि हु एम आई, व्हाट इज माई लाइफ, व्हाट आई शुड लाइक टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा कैरियर कैसा होना चाहिए, मैं जो बनना चाहता हूं उसी हिसाब से मैं एक्शन तो करूंगा। आई एम टू प्रिपेयर, मेक माई सेल्फ, आई एम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, और फिर उसी हिसाब से आई एम टू मूव, आई एम टू गो ऑन, आई एम टू रोल माई लाइफ, राइट। तो दीज आर द मीनिंग दैट वे, ठीक है। हिज वर्ल्ड, टू मूव हिज वर्ल्ड, अपने हिसाब से वो दुनिया को सेट कर ले, अपने हिसाब से वो अपने टेस्ट के अनुसार वो कैरियर प्लान कर ले, ठीक है। वो फादर इज टेलिंग, अगर ऐसा करता है कभी तो फिर क्या होगा? आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ कर दूंगा। सॉरोफुल, वेरी सैड हार्ट के साथ फादर, हर कोई फादर चाहता है, क्या चाहता है? कि बेटा कितना भी जो है गलतियां करे फिर भी जो है उसको क्या कर दे रही, आई वुड फॉरगिव हिम, माफ कर देंगे। शेपिंग फ्रॉम सॉरो ए न्यू लव, मेरी लाइफ में आज मेरी लाइफ क्या है? सॉरोफुल है, बट मैं सब कुछ फॉरगिव कर दूंगा, और फॉरगिव करने के बाद एक नया बॉन्डिंग, मैं जो चाह रहा हूँ डिसिप्लिन बच्चा बनाने की, अगर वो फॉलो करता है तो मैं एक नया लव लाइफ फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो दिस वे दिस स्टैंजा ओवर। द लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि फादर एंड सन द बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, जहां कहीं भी हो बाप और बेटा दोनों एक ही साथ, एक ही घर पे जो है एक ही साथ रहना चाहिए, होना चाहिए। ही स्पीक्स, पापा कहता है, ही स्पीक्स, वो कहता तो है बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूं। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। कभी कभी देखो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, ही स्पीक्स, वो कहता है, दैट मींस मेरा लड़का कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो खुद को भी समझ नहीं पाता है, ठीक है। और वो खुद बोलता है, क्या बोलता है? कि माई सेल्फ, मैं खुद को समझ नहीं पाता हूं। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यहाँ पे ये पॉइंट बेटा देखो दोनों के साथ अप्रोप्रिएट है। किसके साथ अप्रोप्रिएट है? ये जो एडोलेसेंट चाइल्ड है, अगर उसको ये लिखोगे कि एडोलेसेंट चाइल्ड खुद अपने आप को बोल रहा है कि क्या है, कि खुद को मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों मुझ में गुस्सा बनता है, दैट मींस व्हाई एंगर ग्रोज एंड बिकॉज आई एम सैड, आई एम इन ग्रीफ। तो देखो यहाँ पे हियर फादर स्पीक्स कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कभी कभी मेरा जो है मुझको मैं खुद समझ नहीं पाता हूं, क्यों? कि वाई एंगर ग्रोज, मेरे अंदर क्यों एंगर डेवलप होता है? फ्रॉम ग्रीफ, मैं दुखी हूं और दुखी रहते रहते कभी मैं गुस्सा जाता हूं, ठीक है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, शायद बाप चाहता है, पापा चाहते हैं, क्या चाहता है? कि पापा चाहता है कि मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, और शायद बेटा भी चाहता है कि मैं भी बाप के बातों में आ जाऊंगा। पापा जो चाहता है उसी के अनुसार मैं भी डिसिप्लिन बच्चा बन जाऊंगा, पापा के अनुसार मैं भी कैरियर में एक्टिव चाइल्ड बन जाऊंगा। तो दोनों की ख्याल में क्या है? शायद बेटा भी ऐसा ही सोच रहा है कि मैं ओबीडियंट बन के, जैसे बच्चा बचपना था वैसे ही बिल्कुल फिर दोबारा सिस्टमेटिक वे में, एक्टिव वे में, डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन बॉय की तरह मैं जीना चाहूंगा। फादर भी सोचता है, लेकिन पता नहीं क्यों दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन। क्या है?
They suffer from daring power. कैसा daring power? मैं चाहता हूं कि मैं खुद, लेकिन मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फादर हूं। यहाँ पे फादर के भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं? वो बाप है, वो चाहता है तो सब कुछ, सारे इंसल्ट अपने ऊपर कंधों पे लेकर के वो जा सकता है, लेकिन वो रिजिड है, वो रिजिड है, खुद आगे चलना नहीं चाह रहे हैं वो, यानी कि दैट मींस वो रिजिड है। जब रिजिडिटी होगा तो फिर कोई फैसला नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा जो है दैट मींस ये सारे बच्चों के अंदर भी एक ईगो है। कैसा ईगो है? कि ये मेरा लाइफ है, मेरा भी एक राइट है। तो दैट मीन्स यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई पोएट सेज दैट फादर एंड सन शुड लिव टुगेदर। कुछ रिजिडिटी, फादर की रिजिडिटी खुद कट करना होगा, और इसकी जो ईगो प्रॉब्लम, इसको भी ईगो थोड़ा सा कट करना होगा। दोनों का ईगो और रिजिडिटी थोड़ा सा कट होगा, तभी क्या होगा? म्यूचुअल एक लाइफ, बेटर लाइफ हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है। अदरवाइज ये जो ट्रेडिशनल लाइफ की रिजिडिटी लाइफ है, रिजिड लाइफ है, अगर इसको लेके कोई चलेगा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर फ्री एंड फ्रैंक मॉडर्न लाइफ लेके चलेगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। सो दिस पोएम टेल्स अस कि कम्युनिकेशन गैप से लाइफ सक्सेसफुल नहीं बनता है। उस चीज को, आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या पॉइंट है, वो चीज आप समझोगे, समझाओगे, तब जाके क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, नया रिलेशनशिप बनेगा, एक केयरिंग, केयरफुल लाइफ डेवलप होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही एक हैप्पी लाइफ का गुजारा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ना आप मॉडर्न लाइफ लेके, रफ एंड टफ लाइफ लेके, या फिर ऐसे लाइफ लेके आप सिस्टमेटिक सिस्टम में नहीं आ सकते हो। और उधर फादर का जो है ट्रेडिशनल लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ है, वो सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम में भी आपका क्या नाम है, टू मच स्ट्रिक्टनेस नहीं होना चाहिए, टू मच रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। थीम क्या है? ठीक है, थीम क्या है? थीम इज, इन दिस पोएम द थीम इज दैट दैट कम्युनिकेशन गैप, modern life, clash of modern life and that traditional life. Father represents what? Modern life, sorry, traditional life, disciplined life. Son represents what? Modern life, carefree life. Okay, so दोनों के बीच में क्या clashings हैं? This is all about this. Once more, thank you all. क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, और फिर आगे कुछ प्रॉब्लम होगा, ट्रबल होगा तो फिर उसमें इनबॉक्स में डालिए, फिर आई विल सॉल्व यू, हेल्प यू।